Good morning, dear attendees. Before we begin our webinar, we'd like to inform all the attendees that the information shared in all our webinars are purely to impart knowledge, basis the information available with us extracted from the public domain. In case you intend to act on the same, it will be essential that you review the same with your investment consultant. A disclaimer link will also be shared in the chat window soon. Kindly give us a minute or two before we can commence this webinar. Thank you so much, everyone. Dear all, welcome to this exclusive results webinar where our award-winning research team will be presenting you how to approach the company results and share their insights. We always knew that the quality of research was great, and now we are very proud to inform to our dear audiences that the research team has been ranked amongst the top 5 brokerages across Asia Pacific for generating the best performing research ideas by the TIM Group. The TIM Group is the world's largest trade ideas network and is globally recognized by large institutions and fund houses. We wish to congratulate our entire PPWell family and especially our research team for their efforts. Now I would request our MD, Mr. Yuvraj Thakur, to say a few words, and then we'll request our entire research team to come on video, please. Yuvraj, sir, over to you. Thank you. Stop sharing the screen so I can take center stage. Sure, sir, 2 minutes. Hi, good morning. Gives me great pleasure to be speaking on such a wonderful, awesome opportunity. As Hanos just said, we ranked fifth in all of Asia in terms of our research by this organization called TIBS. Now, what does this actually mean? First and foremost, it means that our research desk, fundamentals and technicals have really outperformed. Secondly, the interesting thing about TIMS is that they rank our research not basis on any other factor other than returns, actual returns. So what they do is they give a mock amount per investment idea we give, a notional value, and the returns is what drives the ranking. So it gives me great pleasure to say that our recent performance has been basis of the absolute returns generated on the amounts invested, which is really the only thing that matters. And secondly, unfortunately, this quarter, this year, we came fifth. Over the last 3 years, we've been averaging second.
Now we decided not to make a big noise about it. लेकिन ये जो even top five is pretty good in all of Asia. There are some total of 700 research organizations providing research. To stand fifth in all of them is great. Great job to the research team, Nikhil, Hansraj, Swapnil, Riches, Rohan, Kuber, all of you. Great job. You make us all proud. Thank you, sir. I would request the research team turn on their videos, please. Swapnil to London पहुंच गया. Thank you, sir. Yes, as you said, it's a proud moment, and getting recognition by TIMS, which is one of the largest, institution providing ranking, and they are the largest providers of FIIs basically. So this recognition would help us, in a big way going forward. And I'll thank to all, of course, it's all the entire team effort, and to all the management providing an opportunity. And let's move ahead. Like, this is just the beginning. Yeah, fifth is not good enough. I want podium next year. That's right. And also, we are going to start introducing, this is unofficial, but we are going to start introducing quant and machine learning calls as well for our clients. So that is another big positive. Correct. That's nice. Perfect. Thank you. Hanos, you can continue. Thank you, sir. On this high note, and without further ado, I would request Swapnil to commence this very interesting results webinar. Over to you, Swapnil, sir. Sure. Is my screen visible? Yeah. No, it is not. Hanos? And just share your screen, no, please. Yes. Is it visible? Yes. Yeah. Okay. So welcome to the results webinar. So the idea here was basically, over a period of years, I have personally experienced like a result is one event, one opportunity where, the price action is high because there is an event. Market always reacts on event. Stock prices always reacts on events, be it any event, be it an election outcome event, be it a budget event, be it some news, company specific, sector specific. So कुछ news रहेगा तो obviously price move होएगा because वो news के साथ कोई fundamentals attach रहेंगे, कोई emotions attach रहेंगे, bad news, good news, etc. So based on the nature of event, there would be movement, and whenever there is a movement, there is an opportunity. So I thought, let's understand, result season is something which comes one, in a total year, it comes 4 times. 4 result seasons रहते हैं, quarter 1, 2, 3, 4. So there are n number of listed companies. Really listed companies are more than 6,000 companies. We take away certain companies which are not tradable and they are not good companies. So वो सब exclude करके भी there are tradable 2,000 to 2,500 companies. Now imagine ये सब ऊपर नीचे होंगे based on their results. So why not encash this opportunity? तो ये एक idea था mind में. So I thought I will just share, what drives the result prices, result season को कैसे देखना चाहिए, what are the aspects, fundamentals plus psychological. So this was my idea, and I thought I'll just talk, I'll just share a few things. तो एक idea आएगा कि okay, such things drive the results. So this was the whole thought process behind this webinar. And पहले के जमाने में, मतलब I'm talking very old, like 2-3 decades before, results announce होते थे once in a year. Now imagine, कोई कंपनी कैसा कर रहा है वो पता चलता था 1 साल बाद, so that was a too longer period to someone to take a bet whether the company is doing well or not. Basically results क्या है? Result is a statement, it's an official statement कि company का status क्या है, what is its sales, उसका profit क्या है.
तो एक जजमेंट आएगा कि कंपनी इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. like if we go in school, we go in colleges, तो अपना भी रिजल्ट्स, यू नो, वी गिव एग्जाम, उसके रिजल्ट्स पे यू आर जज कि वेदर यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग बैड. यू नो, एसएससी में रिजल्ट्स के बेसिस पे यू विल बी जज के कौन से कॉलेज में मिलेगा. सो सेम वे एक कंपनी के रिजल्ट से जज होता है, यू नो, वेदर द कंपनी इज डूइंग गुड और बैड. And market rewards good companies, you know, with higher market cap, with this higher prices. As simple as this. So as I was saying, कि पहले के जमाने में साल में एक बार रिजल्ट्स आते थे, तो वो there was a too large period, you know, बहुत स्पेक्युलेटिव हो जाता था कि इतने टाइम बाद पता चलेगा कंपनी कैसा कर रहा है. So over a period of years, markets have matured and, you know, SEBI has intervened. फिर 6 monthly results आते थे. Now quarterly results are coming. So every 3 months you get a fair idea कि कंपनी, यू नो, कौन से स्टेज पे, व्हाट इज इट्स स्टेटस. सो फंडामेंटल्स क्या ड्राइव करते हैं रिजल्ट्स बेसिकली. बहुत लोग पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ये कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है. यू नो, देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स वेयर वन कैन जज के हाउ द कंपनी इज डूइंग वेल और, यू नो, द सेक्टर इज डूइंग वेल. तो लेट्स टॉक बेसिक फंडामेंटल्स. लाइक पहले तो एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए, यू नो. इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत यू नो कोर रिसर्च चाहिए. दिस इज नॉट के कैजुअली पेपर पे पढ़ लिया कि ये, यू नो, ये सेक्टर अच्छा कर रहा है तो चलो ये कंपनीज बाय कर लो. इतना इजी नहीं है ये सब. उसके लिए एक कोर रिसर्च करना पड़ता है, ऑनगोइंग रिसर्च करना पड़ता है. दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. ये वन टाइम ऐसा नहीं है कि ये टाइम ये देख लिया तो हो जाएगा. ये कंटिन्यूस स्टडी है, उससे इवॉल्व होता है कि, यू नो, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर बुरा कर रहा है. तो ये जब भी ऑनगोइंग करते हैं ना, देन यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि व्हाट्स द स्टेटस. फॉर एग्जांपल, जब भी लॉकडाउन हुआ, यू नो, लास्ट ईयर, वी आर इन अप्रैल राइट नाउ, लास्ट ईयर अराउंड मार्च में अनाउंस हुआ था लॉकडाउन. तो एक कॉमन सेंस था कि एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड. तो ऑब्वियसली एयरलाइंस वाज स्टॉप्ड, थिएटर्स वाज स्टॉप्ड. तो देयर आर लिस्टेड कंपनीज इन एयरलाइंस, थिएटर्स. तो जीरो रेवेन्यू था, राइट. कोई फ्लाई नहीं कर रहा था, तो टॉप लाइन वाज जीरो, सेल्स जीरो था. तो इट वाज अ नो ब्रेनर के प्रॉफिट्स नहीं होंगे टाइम, राइट. तो बट सो व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, तो देयर वर लॉसेस अनाउंस्ड. तो ये एक सिंपल कॉमन सेंस है, क्योंकि ये तो एक नोन इवेंट, सबको पता था. बट नॉर्मल लाइफ में हाउ यू जज के ये टाइम कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है, ज्यादा बुरा कर रही है. तो अगेन आई सेड इट्स अ प्रोसेस. यू गॉट टू स्टिक विद द ऑनगोइंग रिसर्च. वो अभी मैं बैंकिंग एनालिस्ट हूँ, तो मुझे बैंकिंग के फंडामेंटल्स पता है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए. कोई फार्मा एनालिस्ट है, कोई ऑटो एनालिस्ट है, तो वो डीलर से बात करते हैं कि कैसे सेल्स बढ़ रहे हैं, कौन से मॉडल्स के कंपनीज अच्छा कर रही है. भी मारुति है तो उसका सालों से डिजायर जो है, उसका बुकिंग हमेशा 3 months वेटिंग ही रहता है. तो एक डीलर चेक कर सकता है, यू नो, कि अभी भी वेटिंग 3 months है या अभी घट के 1 month हो गया है. यू नो, वेटिंग पीरियड कम हो गया, दैट मीन्स कि उसका डिमांड थोड़ा कम हो रहा है. तो ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, सेक्टर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक, जो ट्रैक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, say take an example of like I am tracking banking sector. तो बैंकिंग क्या इकोनॉमी के साथ इन टैंडम चलता है. तो उसमें ट्रैक करना क्या रहता है कि एसेट क्वालिटी कैसा चल रहा है, इकोनॉमी कौन से फेज में है. जब भी बूमिंग इकोनॉमी रहेगा तो लोन्स ज्यादा बढ़ेंगे, पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, पीपल आर रेडी टू टेक बिजनेस रिस्क, लोन्स की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो इट विल डू वेल. जब भी ऑफ लेट, यू नो, लेबोरेटरी फॉर एग्जांपल इज अ क्लासिक एग्जांपल. ऑफ लेट टेस्टिंग, मेनली ड्यू टू कोविड, टेस्टिंग इतने बढ़ गए, तो लेबोरेटरी में यू वुड अंडरस्टैंड कि कितनी डिमांड है अभी. तो बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज है, यू नो, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल. तो ये सब लेबोरेटरी स्टॉक्स हैव zoomed in last 3 months, actually since last 6 months, because of the increasing cases. और ऑफ लेट जो 2 महीने से और बढ़ रहे, तो और केसेस बढ़ गए. तो नो ब्रेनर था कि ये टेस्टिंग कंपनीज वुड डू वेल. एंड इफ यू सी द स्टॉक प्राइसेस, दे हैव रियली zoomed. तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, यू नो, रिजल्ट सीजन में क्रक्स इज टू अंडरस्टैंड कि कभी बाय करना है और कभी एग्जिट करना है. इन टुडेज वेबिनार आई वुड लाइक टू यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट एंट्री आइडली कभी लेना चाहिए और एग्जिट कभी करना चाहिए. सो वन इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द गेन एंड अदर इज टू नॉट गेट इनटू ट्रैप. यू नो, जब भी पब्लिक में अनाउंस हो जाता है उस टाइम अगर बाय करेंगे तो प्रोबेबली यू आर लेट टू द पार्टी एंड देन यू गेट स्टक अप. तो बहुत बार ऐसा होता है कि इतना अच्छा रिजल्ट्स आया,
ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट्स और वो दिन पेपर में पढ़ा एंड यू बाय द स्टॉक एंड पता चला वो दिन जोर से नेगेटिव बंद आ गया, तो यू गेट कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, मैं जब भी लेता हूँ तो प्राइस उल्टा ही रिएक्ट करता है। तो वैसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सब लोग के रहेंगे। तो आई विल कवर दैट साइकोलॉजी पार्ट, ऐसा क्यों होता है, यू नो व्हाई इट हैपेंस के इन एंटिसिपेशन रिजल्ट्स बहुत अच्छा बढ़िया कंपनी चलता है, पोस्ट रिजल्ट समटाइम्स देयर इज हेवी प्रॉफिट बुकिंग, तो वैसा क्यों होता है। और बहुत बार रिजल्ट आने के बाद भी बहुत शेयर और बहुत आगे बढ़ता है, तो वैसा क्यों होता है। तो कभी कभी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी प्राइस रिएक्ट करता है नीचे, कभी कभी ऊपर, तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो टाइमिंग and understanding the psychology behind the moves. If you try to decode all this, then trading will become very simple. I'll give you a few examples. Generally India में क्या results का, Reliance के results का बहुत euphoria रहता है. Like generally Reliance announce करता है results on a Friday evening, and always people are in anticipation कि Reliance का बहुत अच्छा result आने वाला है, and people are always euphoric. And I have seen 8 out of 10 times in last 4 years I'm tracking. So last 4 years में 16 result season मैंने देखे, 8 out of 10 times results के next दिन Reliance नीचे ही बंद होता है, you know, in red, that is profit booking ही आता है। तो this is again a classic case के हमेशा in anticipation लोग bullish हो जाते हैं, and post outcome कैसा भी result हो, कितना भी अच्छा हो, but stock नीचे ही जाता है। तो why it happens? I'll just cover few examples. This is the thing which Henos and Yuvraj sir was talking about. This is the acknowledgement by Tim. Top 10 brokerage houses, we are ranked 5th. We are ahead of Kotak and MK. This is a proud thing. Okay. So आज के दिन में this points I will cover, like factors to consider for results trading, consensus results expectations versus actual results. See, basically results क्या है, कंपनी का एक प्रॉफिट नंबर अनाउंस होगा, राइट, कि कंपनी ने एक्स सेल्स किया है, कंपनी ने एक्स प्रॉफिट किया है, तो एक मार्केट का एक कंसेंसस बिल्ट हो जाता है कि टीसीएस का ये क्वार्टर का प्रॉफिट 2000 करोड़ आएगा। ये एक कंसेंसस कैसे बिल्ट होता है, बहुत सारे एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं, तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स एस्टिमेट सर्टेन नंबर वुड बी फ्लोटिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टीसीएस टू रिपोर्ट 2000 करोड़ प्रॉफिट, तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है फॉर दिस क्वार्टर। नाउ जैसे जैसे रिजल्ट सीजन यू नो अप्रोच होता है, एंड सपोज दैट नंबर इज फार बेटर देन द लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स क्वार्टर, तो इन एंटिसिपेशन प्राइस थोड़ा बढ़ेगा कि लास्ट ईयर के नंबर से, सपोज लास्ट ईयर 1500 करोड़ था एंड दिस टाइम इट्स 2000 करोड़, तो देयर इज अ जंप ऑफ 33% व्हिच इज कंसीडर्ड गुड, देन द प्राइस विल मूव इन एंटिसिपेशन। फिर जिस दिन रिजल्ट्स आएगा, देन पीपल विल कंपेयर कि 2000 नंबर एक्सपेक्टेड था, नाउ व्हाट इज द आउटकम। सपोज द कंपनी रिजल्ट आया एंड कंपनी का प्रॉफिट आया 2100 करोड़ which is slight ahead of the consensus estimate, तो more or less अगर सेम ही रिजल्ट आता है, then you know प्राइस क्या होगा, like ask yourself कि जो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स का था वो सेम रिजल्ट आया, तो प्राइस क्या बिहेव करना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, ask yourself that price should move up, price should remain there or price should go down। in anticipation स्टॉक बढ़ा है and then the result outcome comes और same expectations आता है, तो प्राइस कैसे बिहेव होगा। just think over it, then we'll go to live examples, then you will connect। तो बेसिकली एक रिजल्ट एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करने का, और उसका डिविएशन पे प्राइस रिएक्ट होगा। if the result is far better than the consensus, then obviously the price will catch up। if the result is worse than expectation, then price will go down। तो वैसे एक इनिशियल रिएक्शन होता है। देन देयर इज अ मैनेजमेंट कमेंट्री। जनरली कैसा रहता है, रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद मैनेजमेंट कॉन कॉल रखती है विद द एनालिस्ट कम्युनिटी, तो उधर वो और डिटेल्स देते हैं, रिजल्ट्स का कैसा रहा, आउटलुक कैसा है, आगे जाके क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो वो एक आइडिया देते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर का कैसा आएगा, नेक्स्ट साल का कैसा आएगा। तो वो कमेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा देखते हैं कि आफ्टर रिजल्ट्स प्राइस गिर जाता है, बट मैनेजमेंट कॉन कॉल 2 दिन बाद रहता है, तो वापस प्राइस ऊपर जाता है, तो तभी उसने कुछ बुलिश बोला रहेगा। तो ये जनरल पब्लिक को ये सब नहीं पता रहता है कि मैनेजमेंट कॉन कॉल था, उसमें उसने क्या बोला। यू नो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो इन्फोसिस जो गाइडेंस बोलते हैं, यू नो मार्केट कीनली वॉचेस के गाइडेंस क्या देती है कंपनी,
कि आगे का साल का आउटलुक बेटर है, ओके है, वर्स्ट है, तो मैनेजमेंट गाइडेंस पे स्टॉक बहुत रिएक्ट करता है. इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड लाइक इन्फोसिस गाइडेंस इज द क्रक्स. पूरा आईटी सेक्टर का मूवमेंट इन्फोसिस के गाइडेंस पे होता है. एंड थर्डली इज द प्राइस एक्शन. सी प्राइस हमेशा विल बी द बेस्ट इंडिकेटर. प्राइस जो दिखाएगी दैट वुड बी द परफेक्ट आउटकम. तो प्राइस का मूवमेंट से भी जज यू हैव टू जज के हाउ इज द रिजल्ट. सो लेट्स टेक सम फ्यू एग्जांपल्स. उससे आपको क्लैरिटी आएगा कि ये सब गेम क्या है, इसके पीछे व्हाट इज द पीपल. अभी आपको एक सिंपल मैं बोलूं कि आपको क्या लगता है कि कोई भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला रहेगा तो वो मार्केट को पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा. लाइक देयर आर सो मेनी पीपल वुड बी नोइंग वे अहेड. सपोज 20 तारीख को कंपनी का रिजल्ट है, तो 1 तारीख को इतने लोगों को पता रहेगा कि ये कंपनी का बहुत अच्छा नंबर आने वाला है. एंड दोज पीपल वुड बी एग्रेसिवली बाइंग दिस इन दोज डेज बिफोर रिजल्ट्स. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिजल्ट्स लीक हो जाएंगे. आई वुड नॉट यूज द वर्ड लीक हो गए, बट देयर आर सो मेनी चैनल्स. उससे पता चल जाता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले रहेंगे. एंड दे जो इंस्टीट्यूशंस, जो पीपल, दोज हु नो दैट श्योर शॉट कि ये अच्छा आने वाला है, they would be aggressively buying, right? Why they would leave this opportunity? So हमेशा रिजल्ट्स को अप्रोच करने का मेन पीरियड रहता है 2 weeks बिफोर द रिजल्ट्स, 2 to 3 weeks बिफोर द रिजल्ट्स. तभी जो प्राइस एक्शन अगर अपने को जज करने को आ गया कि समथिंग इज कुकिंग, तो दैट इज द बेस्ट पीरियड टू एंटर. रिजल्ट आ गया उस दिन, 80% पार्टी इज ओवर. यू आर ऑलवेज लेट टू द पार्टी. क्रक्स इज टू अहेड बिफोर रिजल्ट्स, 2-3 weeks, 1 month ahead of results. क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो लोग पहले बाय करेंगे. वो लोग रिजल्ट के दिन बाय नहीं करेंगे. रिजल्ट के दिन दे वुड एग्जिट. एंड आई वुड शो यू विद लाइव एग्जांपल्स कि हाउ दिस हैपेंस. सो क्रक्स इज टू एंटर 3 weeks, 2 weeks, 1 month before the result in anticipation of result. So now the result season is starting, and I'll show you like which are my top results picks for this quarter. What was my understanding? कैसे मैंने ये ढूंढे हैं, and I'll talk about Stocksbook also in that. So let's take an example of say Tata Steel. ये टाटा स्टील का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था. There was a headline, Tata Steel logs highest ever consolidated EBITDA of 9,000 crore. मतलब ये बोल रहा है कि कंपनी के हिस्ट्री में ये क्वार्टर का नंबर सबसे बेस्ट था, हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड एबिटा, एंड पैट इंप्रूव्स टू 4,000 करोड़. अभी ये न्यूज़पेपर हेडलाइन है रिजल्ट आने के बाद कि कंपनी ने ये बेस्ट एवर क्वार्टर, मतलब टाटा स्टील लिस्टेड है 20 साल से, तो उसका बेस्ट एवर क्वार्टर ये क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर वाला. तो अभी ये न्यूज पढ़ के अपने को क्या होगा कि ओ यस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आज तो टाटा स्टील लेना चाहिए. नाउ लेट्स सी के व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन दैट डे. ये यहाँ पे डेट है February 10th, 2021. Q3 रिजल्ट्स जो अनाउंस होते हैं अराउंड 1 महीने बाद, तो दिसंबर एंड के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे 10 फरवरी को शाम को. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट टाटा स्टील डिड. दिस इज अ प्राइस ऑफ टाटा स्टील इन दोज डेज, मतलब 10 फरवरी के पहले. तो ये देखो, ये जो मार्क किया है, दिस पोर्शन इज द रिजल्ट्स डे का एक्शन. और उसके पहले क्या हुआ था, इन एंटीसिपेशन ऑफ रिजल्ट के पहले स्टॉक कंटिन्यू 600 से 700 तक पहुंच गया था रिजल्ट्स के एक दिन पहले. 600 to 700, that is 15% in a matter of 10 days. So what I was highlighting कि रिजल्ट का मेन क्रक्स रहता है रिजल्ट के पहले बाय करना. स्टॉक प्राइस रन अप 15% इन एंटीसिपेशन ऑफ रिजल्ट्स. रिजल्ट के दिन स्टॉक यहाँ खुलता है 722, रिजल्ट्स डे का हाई है 723, एंड इट क्लोज डाउन दैट डे ऑन 681. कंपनी ने बेस्ट एवर रिजल्ट्स अनाउंस किए उसके लाइफ के, बट स्टॉक रेड में बंद हुआ. नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि इन एंटीसिपेशन के बाद हो सकता है यू आर लेट टू द पार्टी, एंड प्रोबेबली if you buy in the morning, तो same day loss and then again the stock fizzles down. तो तुमको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये रिजल्ट्स इतने अच्छे आए बेस्ट, एंड देन ऑल्सो आई एम मेकिंग लॉसेस. सो ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि फैक्टर इन क्या हुआ है, वेदर
वो अच्छे रिजल्ट्स भी प्राइस में फैक्टर इन हो गए हैं क्या, उसके लिए दिस टेक्स टाइम, ये ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्चुअल रिजल्ट, अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स में भी खाली प्रॉफिट नंबर नहीं देखना है, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स देखना है, उसका सेल्स कैसा था, उसका मार्जिन कैसा है, कंपटीशन का मार्जिन कैसा आया है, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट बिकॉज वो सब लोग नहीं कर सकते, दैट यू हैव टू रिलाई ऑन fund managers, on analysts, on their on their work, because they are tracking this ongoing basis. I want to make you understand the psychology part so you don't get trapped. तो ये दिन मतलब ये जज हुआ कि ये रिजल्ट फैक्टर इन हो गया, ये प्राइस में बेस्ट केस आ गया है, और उस दिन वो जो स्मार्ट पीपल दोज हु हैव बॉट हियर दे आर एक्चुअली एग्जिटिंग. इस दिन बेच कौन रहा है? ऑब्वियसली पीपल हु हैव बॉट हियर, कोई तो बेच रहा है, एंड वो लोग का फोर्स ज्यादा है, एंड द प्राइस गोज डाउन. सो बेस्ट एवर रिजल्ट्स आया, बट देखो प्राइस नीचे गया, और अभी ये फेब में हो गया. नाउ टाटा स्टील विल अनाउंस Q4 रिजल्ट्स इन फ्यू डेज. अभी क्या हुआ है, उसका रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट से भी और अच्छा आने वाला है. ओके, तो नाउ यू सी के अभी आगे आगे क्या हुआ, लाइक फेब के बाद मार्च अप्रैल आ गया, एंड नाउ यू सी व्हाट टाटा स्टील इज डूइंग. इट्स गुड. अभी स्टॉक 700 वाला 900 आ गया. ये सब वो लास्ट रिजल्ट्स का एक्शन था, उसके बाद अभी कंटिन्यू हुआ. बट इधर शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, पीपल गॉट ट्रैप. जिसने रिजल्ट के दिन लिया रहेगा उसने लगा अरे मैं फंस गया, एंड देन दे मेक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉस. ये जो प्राइस एक्शन है, इधर लगेगा अरे मैं तो फंस गया, एंड दे एग्जिट ईयर, और फिर नेक्स्ट रिजल्ट्स का अभी सब फैक्टर इन चालू है, तो वापस स्टॉक ऊपर जा रहा है. सो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रैप नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली ईयर ट्रैप इधर नहीं होना था कि रिजल्ट के दिन सुबह को बाई नहीं करना चाहिए था. दैट इज द लर्निंग ईयर, कि ऑलरेडी स्टॉक एंटिसिपेशन में चल गया है, देन व्हाई वी वांट टू वेट लेट टू द पार्टी. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. ये एक कंपनी है, दिस आई वाज ट्रैकिंग इनटू, सुप्रीम पेट्रो करके कंपनी है. व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, बिकॉज इसका प्रॉफिट फिनोमिनली ज्यादा आया था. Like this was a headline, Supreme Petro standalone profits rises 8,000%. और if you can just read this, कंपनी का प्रॉफिट 170 करोड़ आया, और उसके लास्ट क्वार्टर खाली 2 करोड़ था प्रॉफिट. तो यू कैन इमेजिन 2 करोड़ का सीधा 170 करोड़, इतना बड़ा जंप. तो यू विल फील ओ शिट, ये तो आज सर्किट मारेगा ये स्टॉक. इतना बड़ा अगर नंबर आता है कोई कंपनी का सीधा जंप, तो यू विल फील ओ let's just buy it, And now again, let's see what happened. Again, classic example, ये रिजल्ट डे का प्राइस मूवमेंट है. उसके पहले स्टॉक 340 से रिजल्ट के दिन 430 हो गया था, गैप अप हुआ, सेम डे इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग, सेम डे 430 से स्टॉक सीधा 390 बंद आया. इमेजिन, एक्चुअली स्टॉक 10% नीचे गया. नाउ यू बी सेइंग कि इतना बड़ा प्रॉफिट नंबर के बाद भी अगर स्टॉक नीचे जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो लोग बाय कर रहे हैं वो लोग एग्रेसिवली बेच रहे हैं, एंड द स्टॉक हैड फिजल्ड डाउन. सो डोंट गेट ट्रैप इनटू द रिजल्ट्स डे एक्शन. रिजल्ट्स डे के दिन हमेशा वियर्ड एक्शन रहता है. यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, एंड समटाइम्स यू नीड टू एग्जिट अर्ली, वन डे बिफोर और ऑन द ओपनिंग. ये देखो, स्टॉक इन एंटिसिपेशन बहुत अच्छा चला था, एंड देन इट फिजल्ड आउट. नाउ लेट्स टेक अ रिवर्स एग्जांपल. सपोज कोई कंपनी का बैड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड था. इट वाज एक्सपेक्टेड कि बहुत खराब रिजल्ट आएगा. फॉर एग्जांपल, sorry, just one. Okay, so here is an example. इंडिगो का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स था, just 1 minute.
सॉरी, इंडिगो का जो कोविड का जो लॉकडाउन हुआ था, तो ऑब्वियसली देयर वाज वेरी लिमिटेड सेल्स एंड प्रॉफिट प्लंज. तो ये हेडलाइन था, इंडिगो Q1 रिजल्ट्स रिपोर्ट्स अ लॉस ऑफ 2800 crore, रेवेन्यू डाउन 92%. ये हेडलाइन रिजल्ट था. तो वन वुड फील स्टॉक वुड क्रैश, यू नो, कि इतना बड़ा लॉस आया एंड रेवेन्यू इज गोइंग डाउन. तो नाउ अगेन लाइव एग्जांपल के प्राइस कैसे रिएक्ट किया. ये इंडिगो का चार्ट है. दिस इज इन एंटिसिपेशन. स्टॉक 1200 था, रिजल्ट के एक दिन पहले 850 हो गया था. रिजल्ट के दिन क्या हुआ ये देखो. दिस इज अ, यू वुड बी क्वाइट सरप्राइज व्हाट हैज हैपेंड. स्टॉक ओपनड एट 870 एंड सेम डे स्टॉक 950 बंद हुआ था. नाउ यू विल फील कि इतना बड़ा लॉस आने के बावजूद, यू नो, 90% प्रॉफिट उड़ गया, इतना बड़ा लॉस आया, रेवेन्यू वाज डाउन बाय 90%, स्टिल द स्टॉक वेंट अप. एंड उसके बाद देखो क्या हो रहा है. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो फैक्टर्ड इन मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब वो प्राइस में इवेंट आ चुका है. वो रिजल्ट्स खराब जो आने वाले हैं वो ये प्राइस में फैक्टर इन हो गए, वो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है. यहाँ से आउटलुक अगर अच्छा रहेगा then short covering would be coming. So this is where sometimes people get stuck, you know. ये F&O में है, people think कि ये तो short करना चाहिए, but just imagine वो क्या trap में आ जाएगा अगर ये इस दिन short करेगा तो. And these are the people who have earlier shorted, they are buying now, वो लोग cover कर रहे हैं, and then you know the stock zoom. So इसके साथ अगर volume देखें ना, volume, तो आपको intensity पता चलेगा कि क्या हो रहा है. ये देखो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो रहा है. ये जो ग्रीन बंद आया है एंड द वॉल्यूम इज हाइड, और उसके बाद और ऊपर. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या होने वाला है, यू नो. वो इवेंट एक्चुअली प्राइस में आ गया है और उसके बाद क्या होगा. तो तभी एंटिसिपेशन क्या था कि कोविड लॉकडाउन पूरा हो गया है. इंडिगो बहुत अच्छी कंपनी है, कैश वगैरह उसके पास सॉलिड है, बट ये क्वार्टर ऑब्वियसली प्लेन्स कोई फ्लाई नहीं किए थे, तो 0 सेल्स थे, तो लॉस आया. बट आगे क्या होगा, ये परमानेंट बंद हो गया कंपनी या आगे हो सकता है. तो वो जो स्मार्ट हैंड्स है, वो लोग को लगता है ये प्राइस बेस्ट प्राइस है मुझे खरीदने का, तो दे एंटर इन. बिकॉज स्ट्रीट में, मार्केट में पैनिक है कि इतना बड़ा लॉस आया, बेचो, स्टॉक डंप कर रहे लोग. बट जो स्मार्ट हैंड्स है वो लोग बाई कर रहे हैं, एंड स्टॉक 800 वाला आज 1600 है. So this is the psychology behind price action, you know. To understand कि what is factored in the price is very important. And उसके बाद आगे का आउटलुक क्या है. अगर आगे का आउटलुक प्रॉमिसिंग है, then you should aggressively buy. And same way in the reverse case, अगर बेस्ट रिजल्ट आया बट उसके बाद अगर कंपनी का बेस्ट रिजल्ट और आगे नहीं आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा. एंड दैट व्हाट हैपेंड इन टाटा स्टील, सुप्रीम पेट्रो, जोर से प्रॉफिट बुकिंग आया. देन वो आगे का थोड़े टाइम बाद प्राइस अगेन विल स्टार्ट किया. अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स और आने वाले रहेंगे तो प्राइस वापस ऊपर जाएगा. सो दिस इज मार्केट ऑल अबाउट, यू नो, अप डाउन, प्लेइंग विद द इमोशन, साइकोलॉजी. बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, वो लोग एग्रेसिवली बाई सेल करते हैं रिजल्ट्स पे, देन दे एग्जिट. तो इसके लिए प्राइस ऊपर नीचे होता है. देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, ये एंट्री मेरा प्रॉपर है नहीं है, यू नो, दैट वे. अगेन टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ, ये पिरामल का एक रिजल्ट है. पिरामल एंटरप्राइज बड़ी कंपनी है. उन्होंने एक लॉस रिपोर्ट किया था सडनली, 1700 करोड़ लॉस. ये हुआ था मई 11 को. उसके पहले लास्ट 10 साल में कभी पिरामल ने लॉस रिपोर्ट नहीं किया था. सडनली इन्होंने बिल्डर एडवांसेस दिए थे एंड दे हैड टू टेक सम लॉसेस सडनली, तो उन्होंने इतना बड़ा लॉस रिपोर्ट किया. अगेन लेट्स सी व्हाट स्टॉक डिड. ये उसके पहले देखो, पिरामल ऑलरेडी गिर रहा है. ये रिजल्ट डे का प्राइस एक्शन है. स्टॉक नीचे जाता है. ये लाइव मार्केट में रिजल्ट आया था, 1 घंटे के लिए स्टॉक नीचे गया 800 तक, देन इट बाउंस बैक. सेम डे उसका क्लोज आया, यू नो, 900, एंड देन स्टॉक जूम. अभी व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्ड इन, ये जो मूवमेंट है ना, ये वाला, ये रिजल्ट में ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है कि इस रिजल्ट खराब आने वाला है.
तो इधर एंटिसिपेशन में शॉर्ट करना चाहिए एंड इधर एग्जिट करना चाहिए. 10 साल में कभी रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं आए थे, बट ये टाइम आए, देन ऑल्सो स्टॉक वेंट अप. So this is the psychology part, you know, whether the event has been factored in और आगे का आउटलुक क्या है. If you understand these things, then only you will be able to understand the concept of entry and exit smartly. Otherwise हमेशा ट्रैप होते जाएंगे. Finally, let me take an example of election outcome. 2019 में जब बीजेपी अगेन वन, लाइक 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades. तो 2019 में क्या हुआ था जब मोदी जी वन अगेन, तो उस दिन क्या हुआ था. इलेक्शन इज अ वेरी क्लोजली ट्रैक्ड इवेंट, राइट. एवरीवन ट्रैक्स इलेक्शन और स्टॉक मार्केट्स, यू नो, बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे प्रेडिक्शंस, इतना सारा सब इन्वॉल्व रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड लेट्स डिकोड, यू नो, व्हाट हैपेंड. ये जो प्राइस मूवमेंट है ना, ये पोल इलेक्शन के जो मंडे, ये इलेक्शन का रिजल्ट थर्सडे को आया था एंड दैट वाज एन एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस डे. उसके पहले मंडे को पोल का रिजल्ट आया था. तो इसमें प्रेडिक्शन आया था कि बीजेपी को इतना सीट्स मिलेगा एंड दे विल विन. तो मार्केट स्टार्टेड रिएक्टिंग. तब भी बड़ा गैप अप हुआ था एंड मार्केट इधर से निफ्टी 11,300 400 और से ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग अप. एंड और ये रिजल्ट डे का मूवमेंट है, ये फर्स्ट आवर है. मार्केट 9:30 बजे स्टार्ट हुआ, 10:30 बजे तक मार्केट इन एंटीसिपेशन ऊपर जा रहा था. और जैसे ही कंफर्मेशन हुआ कि बीजेपी हैज वन, वो नंबर ऑफ सीट्स क्रॉस हो गए, यू नो, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड. मार्केट जोर से गिर गया. Nifty was surprisingly down 400 points from the high on that day because BJP winning the elections was factored in already. ये जो मूवमेंट था, इधर 80% मार्केट को फैक्टर हो गया था कि बीजेपी जीतने वाले हैं. तो दिस इज जस्ट अ यूफोरिया. एंड मेनी ऑफ यू पीपल अटेंडिंग दिस वेबिनार, यू वुड नो दैट मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में तभी डाला था, एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू एंड इन रेड टुडे. बिकॉज वो सिंपल है कि जो आउटकम था वो ऑलरेडी मार्केट को पता था. तो इससे अभी पॉजिटिव सरप्राइज हुआ या नेगेटिव सरप्राइज हुआ? बीजेपी जीतने वाला है, वो मार्केट को 80% पीपल न्यू दैट बीजेपी विल विन. और उस दिन भी मार्केट ऊपर जाता है, देन इट्स टाइम टू एग्जिट. वो ट्रैप नहीं होना है, उधर एग्रेसिव बाय नहीं करना है. एंड इमेजिन दिस वाज एन expiry day. People who would have bought aggressively or shorted put options, they got battered that day. Heavy losses बहुत लोगों के हुए रहेंगे और obviously बहुत लोगों को profits भी हुए रहेंगे, those who started shorting. So this is the classic euphoria, you know what I was saying. एक line है, buy on rumors, sell on news. मतलब in anticipation हमेशा you can take a bet, actual outcome आने पे exit. So this is a key learning which I wanted to share with you, that don't get trapped. Mostly event publicly announce होने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, be it any event, company specific हो, because just common sense apply करो कि बहुत लोग रहेंगे जिसको पहले से ये event पता है, वो लोग ने aggressively buy किया है, वो लोग वो दिन sell करने आएंगे और वो लोग अगर जोर से सेल करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा. इतना सिंपल है ये, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एग्रेसिव सेलिंग होगा तो प्राइस नीचे जाएगा, पॉजिटिव सरप्राइज नहीं होगा तो प्राइस नीचे जाएगा. इतना सिंपल है ये. सो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड प्राइस एक्शन, इवेंट्स फैक्टर्ड इन, नॉट फैक्टर्ड इन. ओके, सो दिस वाज फ्यू एग्जांपल्स, यू नो, जो मैंने 2-3 एग्जांपल दिखाए. बहुत अच्छा रिजल्ट आया बट स्टॉक नीचे गया, बहुत खराब रिजल्ट आया बट स्टॉक ऊपर गया. तो आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया कि प्राइस साइकोलॉजी क्या होता है. वो इवेंट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है नहीं है, वो समझना बहुत जरूरी रहता है. ऑन वन फाइन डे यू रीड इन द न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप से मैसेजेस आ रहे हैं, बेस्ट एवर रिजल्ट्स, बाय कर लो. इट्स अ ट्रैप, यू मे बी गेटिंग ट्रैप. तो यूज द इमोशंस, टेक एडवांटेज ऑन द ऑपोजिट साइड, यू नो, डोंट बी विद द हर्ड. मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कभी लोगों के साथ रहना है, कभी लोगों के विरुद्ध जाना है. एंड यू नो, कॉन्ट्रा बेट्स इफ वर्क वेल, दे गिव फास्ट रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स. नाउ let us talk something about this result season. You have been patiently hearing me. This part was a psychology part. ये हर result season में काम आएंगे
how to approach result season, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए. Basically, my idea is to not to get trapped. Losses नहीं होने चाहिए. एक बार profit नहीं होंगे तो चलेगा, but unnecessarily losses नहीं होने चाहिए. And few things on this result season. अभी every quarter results खत्म होने के 45 days बाद वो period रहता है that company has to announce a result. तो कोई company suppose ये March ending है, तो some companies would be announcing in 10th April, 15th April, end of April, May 15 तक का टाइम रहता है. एनुअल ये है, इसके लिए 60 डेज का टाइम रहता है. तो ये पूरा रिजल्ट सीजन है. So we as a research house, we have various analysts tracking various sectors, banking, pharma, auto, cement. So सब लोग का एक niche रहता है, सब लोग का आइडिया रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Based on that, we build expectation कि results कैसा आएगा. Then we mix price psychology, and then we come to a conclusion कि okay, this company can be traded, this company can be shorted. उल्टा भी कर सकते हैं. This is how we as a research house approach the result season. And just to give you a brief, sector wise, कि ये time ये जो 3 sectors है where we feel के results अच्छे आएंगे. Now we have a study on this, particularly metal stock, commodity stocks. Overall commodities are doing very well. Commodities में क्या क्या आता है? Metals आता है. Metals में भी क्या क्या आता है? Steel, copper, nickel, zinc. These are the base metals जो बोलते हैं. Then crude आता है commodities में. तो why metal stocks are doing well? Actually ये correlation क्या हो गया? 6 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले total lockdown था. Then gradually things started opening up. तो क्या वो जो factories थे, manufacturing bases थे, overall globally supply जो था वो बंद हो गया था. That was stuck. Overnight, lockdown की वजह से सब companies बंद हो गई थी. Being a manufacturing base, it's not easy कि overnight companies को start करके, manufacturing start करके distribution start कर देना. Logistical challenges थे. तो supply side बहुत disrupt हो गया था. कोई भी चीज पहुंचाना difficult हो गया था. तो overall commodities तभी एकदम प्राइस करेक्शन हो गया था, जब भी लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ. फिर लास्ट 6 महीने में जैसे जैसे इकोनॉमी ओपनिंग अप हुई, तो ये सप्लाई जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, बट डिमांड फास्ट हो गया. क्या हो गया? काम अटक गया था, ब्रिज का काम अटक गया है, घर का काम अटक गया है, बिल्डर का बिल्डिंग बनाने का काम अटक गया है. तो वो बोल रहा था फटाफट सीमेंट लाओ, फटाफट स्टील रॉड्स लाओ, मुझे फटाफट अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है. और कंपनीज सप्लाई फटाफट नहीं कर सक रही थी बिकॉज लॉकडाउन के पहले सब बंद हो गया था. तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम था, तो प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ गए. जब भी डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई कम रहता है, तो प्राइस बढ़ जाता है, राइट? कॉमन सेंस. तो स्टील के प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई. लाइफ में इतना स्टील का प्राइस रफली अराउंड 55,000 और टन आज तक नहीं देखे, वो ये टाइम चल रहा है. तो सिंपल कोरिलेशन है, जो कंपनी स्टील सेल कर रहा है उसका रियलाइजेशन हैज मूव्ड अप ट्रिमेंडसली. And that's why in anticipation, stocks like Tata Steel, SAIL, JSW Steel, they are making all-time highs because ये quarter कंपनी का बेस्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं और स्टॉक्स वो फैक्टर इन कर रहे हैं. अभी रिजल्ट के दिन सोचना है कि अभी इसके आगे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या और बाय करना है. सो दैट इज अनदर थिंग. बट ये जो है उसमें मेटल्स एंड माइनिंग, IT कंपनीज आर अगेन डूइंग स्ट्रक्चरली वेरी वेल. आफ्टर लॉकडाउन पीपल रियलाइज कि IT का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो 3-4 साल में जो काम होने वाले थे वो 1-2 साल में हो रहे हैं अभी IT रिलेटेड, IT इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड. तो लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट. तो IT कंपनीज लास्ट क्वार्टर भी अच्छे थे, ये क्वार्टर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. एंड सीमेंट अगेन, डिमांड सप्लाई मिसमैच, प्राइसेस गोइंग अप, वुड अनाउंस गुड रिजल्ट्स. सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट. सेक्टर का एक अप्रोच रहना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा. देन यू जॉट डाउन कौन सा कंपनी अच्छा कर सकता है. देन इन डेप्थ एनालिसिस. Real estate has done very well, especially in states like Maharashtra. Real estate stamp duty benefit announce किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. That played out very well. So stocks like Oberoi Realty वगैरह would be announcing very good numbers. क्योंकि इतने सारे bookings हुए थे. People have spent on properties. अभी जनरली ऐसे सोचता कि रियल एस्टेट क्या चलेगा. अभी 6 महीने पहले ऐसे था कि तो पूरा गया, कौन घर खरीदेगा, सब लोग को कैश फ्लो का इश्यूज है. बट टू द कॉन्ट्रेरी, रियल एस्टेट हैज डन एक्चुअली वेरी वेल. तो ये सब स्टडी
one has to be involved in all this. ग्राउंड रियलिटी भी चेक करना पड़ता है. जस्ट कंपनी बोलेगी उस दिन करोगे तो कुछ नहीं होगा. You need to have your own ground checks. And like we have been talking to real estate agents वगैरह, कैसे bookings हो रहे हैं. तो we have selected Oberoi Realty, जो luxury player है, and we expect उसका results बहुत अच्छा आएगा, and we have betted on that and we have recommended to our clients. So this is just an overview कि ये companies के अच्छे results आ सकते हैं in the IT sector. Then this is on the metals and mining sector. I am just giving you an idea, what we have studied वगैरह. अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज के दिन जाके अभी JSW Steel buy करो, because ये प्रोसेस तो हम लोग ने एक महीने से चालू कर दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग आएगा. और जैसे मैंने समझाया था कि प्राइस पहले ही बढ़ेगा, रिजल्ट के एक दिन पहले नहीं बढ़ेगा. प्राइस ऑलरेडी पहले एंटिसिपेशन में बढ़ेगा. So you have to start buying ahead of results. This is the cement sector companies which we feel, अभी ये कंपनी का एक नेगेटिव भी लिखा है, तो ये नेगेटिव बिकॉज वी हैव डन ग्राउंड रिसर्च, वो कंपनी का ये टाइम सेल्स कम रहेगा वगैरह. तो दिस इज कंपनी स्पेसिफिक, ऑल based on our analysis. What I would like to highlight here is this part. I want to take few minutes and explain you guys about the stocks box concept. Many of you would be aware. Stock box basically it's a technological platform where you buy ready-made portfolios. आपको कोई कंपनी स्पेसिफिक दिमाग नहीं यूज करना है कि आपको ये बाय करना है, ये बाय करना है. एज अ बॉक्स टेलर मेड आपके लिए कस्टमाइज बॉक्सेस रेडी है. MNC बॉक्स है, BFSI बॉक्स है, फार्मा बॉक्स है, IT बॉक्स है. Then the fund manager automatically has given allocation to IT. Suppose IT box है तो उसमें TCS, Infosys, Mindtree, HCL Tech already ready है, तो आपको खाली बॉक्स बाय करना है, ऑटोमेटिकली स्टॉक्स बाय हो जाएंगे. तो this time we have created one results box. So हमारी टीम की जो स्टडी है कि ये रिजल्ट्स, ये कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उस बेसिस पे हमने एक रिजल्ट्स बॉक्स रेडी किया है. And we will be betting on those companies where, based on our study, we are expecting very decent results, or in anticipation price move होंगे. And then we will take a call whether to exit on result day or, sooner or later. So this is a short-term box where the box has launched last week, and the time horizon is till end of May. And we will be betting on 15 to 20 strong companies whose results are expected to be good. ये कोई एरर नहीं है, ये इंटेंशनली ये सब नाम हम लोग ने हाइड किए हैं. These are the companies which we have selected in the results box. एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग ने दो कंपनीज यहाँ पे हाईलाइट की है, जो सुप्रीम पेट्रो, व्हाट आई वाज शोइंग यू द एग्जांपल, एंड IGPL. तो वी ट्रैक दिस कंपनीज, वी नो द केमिकल्स, दे आर द प्रोडक्ट्स जो उनके हैं, उनके प्राइसेस और बढ़े हैं, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स वुड बी फिनोमिनल. एंड वी हैव बॉट दिस कंपनीज इन द रिजल्ट्स बॉक्स. And price is already doing well. Like last week हम लोग ने buy किया था, stock has run up 10% after that. तो ये these are the various companies which we have put in the result box. Publicly we are not disclosing this right now, otherwise there's no point in doing all this hard work. If you want to buy all these companies, एकदम simple है, just buy the results box and ये सब जो hard work है, if you want to take benefit of all this, then you can directly invest here. And कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये सब कॉम्प्लेक्स है क्या इतना, मतलब कंपनी का स्टडी करने का, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस नीचे आएगा. So prima facie it might seem very challenging, but if you really think, it's a great opportunity to encash the price movement. And we being in this field in now 24/7, we understand these markets well. And we, as our performance speaks, touch wood, we are doing decent. So you can take advantage of this by investing in results box. That's it from my side as of now. I wanted to keep this session interactive, but मैं मेरे flow में बोलते गया. If anyone wants to ask anything particularly on the results aspect, मतलब मैंने जो भी discuss किया, उस पे अगर किसी को कुछ पूछना हो, then I would be happy to answer anything result specific,
company specific psychology part, how to think, anything. Be free to ask. We will. Well, I'll be very happy to answer. Thank you, Swapna, such an interesting topic. In fact, when you mentioned about questions and answers, Mr. Digambar asked a question about what about HDFC Bank results coming on 17th April and the overall banking sector. Okay. What I would like to say, I will come on to company specific, sector specific thing. If anyone wants to ask anything on the overall understanding, if you, अगर ऐसा कोई question हो तो not company specific, sector specific, broad on the psychology part, on the how to approach, उसमें अगर क्या है तो पहले ले लेते, then वो flow start हो जाएगा companies का. I have a question. Everyone says channel check, channel check. Now, how exactly how reliable are these channel checks? And if someone wants to go ahead and do it, how would one go ahead and do these kind of channel checks? Or rather, how do you do them? Okay. Your voice was slightly low. I'll just reiterate the question. Sir was asking there are people who do channel checks and then they say according to the channel checks, this company results can be good or bad. Uske products अच्छे करेंगे. So how reliable is those channel checks and how one should go ahead? So basically, channel checks कैसा रहता है? It's a niche thing where suppose मेरे कोई अंकल है, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स है, वो स्टील मेटल सेक्टर में, वो स्टील में है, and over a period of years I've been interacting with him to take an outcome of what's happening in the steel. अभी suppose मैं खाली इतना जिस्ट मुझे समझ जाता है कि प्राइसेस क्या हो रहा है, वो मुझे नहीं बता पाएंगे कि टाटा स्टील अच्छा कर रहा है कि नहीं, बट वो मुझे बता पाएंगे कि स्टील प्राइसेस ऊपर गए या नीचे गए, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा. तो ये एक चैनल चेक हो गया कि स्टील प्राइसेस आर डूइंग वेल compared to last quarter or not. तो ये एक चैनल चेक मैंने कर लिया. Then it's up to me, how to extrapolate this and confirm कि whether this is right or wrong. Suppose कोई डीलर है आपका जो पेंट इंडस्ट्री का है, वो डीलर है, उसका नेटवर्क है से महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, दे आर सेलिंग पेंट्स ऑफ एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स. वो आपको कुछ इनपुट्स देता है कि ये टाइम सेल्स अप है, डाउन है, बिल्डर से बहुत सारा डिमांड है ये टाइम, एटसेट्रा. So based on that feedback, you start preparing yourself कि okay XYZ. तो वैसे सब जब भी strong channel checks के बहुत deviation आता है, बहुत अलग कोई view आता है, and if that goes right, then the reward is very handsome. जो market को नहीं पता है, but तुम लोग को कोई खुद के channel check से पता चल गया, जैसे real estate I'm saying, एक जनरल लेमैन को लगेगा रियल एस्टेट थोड़ी अच्छा करेगा ऐसे टाइम में, लॉकडाउन अभी जस्ट खत्म हुआ है, लोगों के पास पैसे की मारामारी है, कैश फ्लो इश्यूज है, कौन घर लेगा. बट यू जस्ट सी दिस टाइम ओबेरॉय रियलिटी के नंबर्स, यू वुड कम टू नो के कंपनी के लाइफ के हिस्ट्री में बेस्ट बुकिंग्स ये क्वार्टर हुई है. तो दिस वाज ऑन द चैनल चेक्स डन. डायरेक्ट कंपनी में जाके बुकिंग कर सकते हैं, एक गेज कर सकते हैं वो प्राइस कम कर रहा है कि नहीं. सपोज वो 3 करोड़ का एक फ्लैट ऑफर कर रहा है, यू एग्रेसिवली बार्गेन, अगर ही इज नॉट रेडी टू रिड्यूस द प्राइस, तो एक चैनल चेक हो गया ना कि ये प्राइसिंग पावर है, इसके पास डिमांड है, इसके पास बायर्स है. तो दिस आर ऑल दी वेरियस वेज. आई हैव जस्ट गिवन 2-3 एग्जांपल्स. वैसे जो भी सेक्टर कंपनी में अलग अलग खुद के पैरामीटर्स से कर सकते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ ऑनगोइंग चैनल चेक्स यू कम टू नो कि इसका कितना रिलायबल है, नहीं है, एंड देन यू बेट. सो दिस इज हाउ वन शुड अप्रोच चैनल चेक्स. Yes. Any further questions? Only broad questions. Actually, Mr. Suresh asked a question. Results on an average, how many days before the result date does the price action start? So on an average, as I said, ideally between 2 weeks to 1 month. That is a broad range. तभी strong mind चालू हो जाएगा. I can show you live example also. For example, हम लोग ने, for example, let's see कि ये result season में what I was saying, कि ये कंपनी in anticipation of good results we have bought certain companies. उसमें से एक का एग्जांपल देता हूँ. जैसे सुप्रीम पेट्रो का
अभी ये जो मैंने पहले वेबिनार में एग्जांपल दिया था ना, ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स है। यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ था और स्टॉक फिर धीरे धीरे नेक्स्ट एक वीक में गिर गया था, और फिर ये 2 महीने का टाइम है। यहाँ पे नॉर्मल मार्केट्स में ऊपर नीचे स्टॉक उधर का उधर ही था। अभी इसके रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थोड़े दिनों में, और ऑफ लेट ये देखो क्या हो रहा है, सॉरी सडनली बाइंग स्वप्निल, स्टार्ट। स्क्रीन शेयर करोगे प्लीज? सॉरी, विजिबल? यस। सॉरी। तो ये जो मैं बोल रहा था, ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था जो मैंने एग्जांपल पहले दिया। इधर अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद स्टॉक नीचे आ गया। फिर ये 2 महीने का टाइम था जब ये नॉर्मल स्टॉक बिहेव किया। नाउ इन फ्यू डेज द रिजल्ट्स गोइंग टू कम एंड अगेन यू सी व्हाट्स हैपनिंग। तो ये मुझे तो एक कंफर्मेशन एक्चुअली मिल गया है कि कंपनी का रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज ऐसा ही सेट के प्राइस स्पीक्स, प्राइस रिजल्ट के पहले ही इंडिकेट कर देगा। एंड ये इंटेंसिटी जानने के लिए लेट्स सी द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द बेस्ट इंडिकेटर। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, यहाँ पे इतने दिन वेरी लो वॉल्यूम्स एंड सडनली यू सी बिग वॉल्यूम्स। तो मेरे लिए ये और एक कंफर्मेशन हो गया कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मैंने ये स्टॉक बाय किया था 445 में, आज 500 है इन 4 days। सो नाउ आई विल जस्ट बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स डे, प्रोबेबली एग्जिटिंग अराउंड 550 अगर हो जाता है तो दिस इज हाउ यू अप्रोच। मेरे खुद के चैनल चेक्स थे, मुझे पता था ये अच्छे कंपनीज के रिजल्ट आ सकते हैं। मैंने बाय किया था, लकीली रिजल्ट बॉक्स वी हैड लॉन्च फ्यू डेज बैक उधर, एंड नाउ दिस इज अ कंफर्मेशन। तो हो सकता है ये मूवमेंट अभी आया, ऐसा नहीं है कि ये आ गया, अभी 1-2 वीक बाद भी आ सकता था। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ब्रॉडली बिटवीन 2 weeks to 4 weeks इज एन आइडल आंसर के एक प्राइस मूवमेंट चालू हो जाएगा। और वो वैसे नहीं है कि एवरीडे ग्रीन ही आएगा, कभी भी ऐसे मत सोचना कि एवरीडे वो फिर ग्रीन ही होगा। जब भी रिवर्स भी होगा, मार्केट सेंटीमेंट से मार्केट नीचे जाता है तो नीचे भी जाएगा, तो उधर एंट्री मारने का। लाइक ओबेरॉय रियल्टी, मैंने मतलब आई हैव बीन ट्रैकिंग सिंस 1 year। अभी ये स्टॉक एक्चुअली देखो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा 650। अभी देखते होता है कि नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है। लेट्स सी, वी हैव टेकन अ बेट, व्हाटएवर हैपेंस। और नहीं भी होता है देन रिजल्ट्स के लिए बाय किया है ना, देन एग्जिट इट। फिर वो सोचने का नहीं कि मेरा कॉस्ट क्या है, रिजल्ट के दिन देन यू हैव टू टेक अ फेयर कॉल एंड एग्जिट द पोजीशन। So this is one stock, Oberoi Realty, which we expect maybe cross हो सकता है। Let's take one more. I disclosing one more stock of the results box, that is KSB Limited. ये एक रिजल्ट्स है जो अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च इसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, एंड स्टॉक ऑल टाइम हाई अप्रोच कर रहा है। ऑल टाइम हाई का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हेनेवर अ स्टॉक अप्रोचेस ऑल टाइम हाई मींस इट्स डूइंग रियली वेरी वेल, और अगर ये क्रॉस होता है देन आई थिंक स्टॉक शुड डू मोर वेल। तो दिस इज वन स्टॉक वी हैव बॉट एट अराउंड 830 लेवल्स। लास्ट एक वीक में अच्छा मूवमेंट आया, ये 930 है अभी। So 2-3 stocks which I have highlighted: Supreme Petro, Oberoi Realty, KSB Limited. These are few stocks of the companies which we have bought in the results box. Yeah. Swapnil, can you also share the IT slide again, please? IT sector slide that you had shown earlier. Yeah. Can you see? Yes. Thank you. Dr. Salil Choksey had asked if you can see the IT Yeah. slide once more. Cool. And Shubham had actually asked a question about the psychology part again. I think he had missed certain part of that. Can you just give a quick recap on the psychology part? Oh, sorry. Okay. So overall key takeaway from the webinar regarding the psychology part is to understand what is factored in the price when the results day is announced. You need to understand कि stock अगर in anticipation में चल गया है तो post result whether it will continue या फिर stock fizzle out हो जाएगा.
that understanding should be there, and you should not get trapped on buying on the result day. Many times it will happen that, when positive surprise, there is two terms, positive surprise, negative surprise. Surprise means क्या, मार्केट को पता नहीं था, सरप्राइज था वो. सपोज कोई सडनली कोई कंपनी का अच्छा रिजल्ट आता है जो मार्केट को एंटिसिपेशन में नहीं था, तो रिजल्ट के बाद भी चलेगा. एंड सर्टन टाइम्स पूरा मार्केट को एक्सपेक्टेशन था अच्छा आएगा. टाटा स्टील सबको पता है कि बेस्ट रिजल्ट आएगा. तो अभी रिजल्ट के दिन हु इज एट द रिस्क, द बायर और द सेलर? रिजल्ट के दिन सबको सब पता है अच्छा आएगा, कंपनी अनाउंसेस रिजल्ट्स, तो उस दिन अगर आप बाय करोगे तो आप रिस्क पे हो, या जो शॉर्ट कर रहा है वो रिस्क पे है. थिंक ओवर इट. सबको सब पता है, प्राइस चल भी गया है, तो अकॉर्डिंग टू मी बायर इज एट द रिस्क. वो लास्ट में बाय कर रहा है, तो उधर रॉन्ग जाने के चांसेस ज्यादा है. So understand what is factored in, understand whether it's a surprise for a market or it was known for the market, and accordingly do your trade. ये कोई भी इवेंट्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. ये मैंने रिजल्ट सीजन के साथ कोरिलेट किया है. अब जनरली भी जैसे इलेक्शन का मैंने दिखाया था, पता था बीजेपी आने वाला है, बीजेपी आया, तो उस दिन अब बाय करोगे तो रिस्क कौन है, बायर या सेलर? तो बायर रिस्क पे था, मार्केट गिर गया फिर. Praveen Chandra had asked also one question, Swapnil sir. Okay, how can anyone predict company result by such hardly low variation? Sorry, can you just repeat it? I am not able to get. From what I understand is, I think he wants to ask, with such a low variation, how can someone understand and predict the company results? Yes, so that's what I said. For a normal person who is doing his own business, job, etc., how would come to know ये company का result अच्छे आने वाले, बुरे आने वाले, and accordingly trade. So that is precisely the reason we have introduced results box. If you want to take advantage of such things, then you need to keep faith on the fund managers and like betting on their knowledge. It would be difficult for a normal person to track all this. It's very difficult. हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट्स में कोई पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर कंपनी का नेटवर्क हो, एंड देन यू गेट सेंस दैट कंपनी इज डूइंग वेल एटसेट्रा, वो 1-to-1 बेसिस पे दो पांच कर लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट एज अ होल यू वुड वेरी डिफिकल्ट कम टू नो. मैनेजमेंट कॉन कॉल्स रहता है वगैरह, वो सब नहीं पता रहेगा, वो सुनने अटेंड नहीं किया रहेगा, तो फिर क्या रिएक्ट करना. So precisely the answer for this is the results box, and divert your investments through various boxes. Great. I don't think there are many results-based questions out there, Swapnil sir. And there were a few stock-specific questions. In the question answer box, I can see, do you interpret open interest and... Okay. This is an interesting question. Do you interpret open interest and open chain data for results? Yes, to some extent, this is also helpful in very active companies where the open the options volume is high, particularly like Infosys, TCS, Reliance, HDFC Bank. Their option data chain also gives some hint, what is anticipatory and what's been building in. So open interest also helps. Fine. Swapnil, are there any other questions that you foresee that would be interesting for our audiences? No, that's it. That's it. Okay, great. Thank you then. Thank you, the entire research team, for sharing your thoughts. We believe that through this webinar, we've been able to share our views in the best possible way. And we hope to see you all for the next webinar soon. Thank you, everyone. Yeah, thank you. Bye. Bye.